Assalamu alaikum. Good morning, everyone. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही टाइम कम होता है और हमें एक से दो ज़्यादा टॉपिक्स देखने हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में, वो है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अब कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है? तो in formal language theory, a context-free language is a language generated by some context-free grammar. Okay, ये जो terms है, these terms are totally new for you all. Context-free language, context-free grammar. तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ऐसे याद रखना है कि in formal language theory, context-free language is a language that can be generated by using some context-free grammar. Okay, just like the other regular languages generated using the regular grammar, the languages that are generated using the context-free grammar are known as the context-free languages. Okay. Then the next is set of all context-free language is identical to the set of languages accepted by pushdown automata. Okay. Now pushdown automata is a new term. We have seen some finite automatas before, deterministic finite automata, then non-deterministic finite automata. So it is the pushdown automata, and this pushdown automata is generally used as the set of all context-free language. These are identical to the set of the languages accepted by pushdown automata. So the languages that are accepted by pushdown automata, you can call those language as a context-free language. For designing the regular languages, we have used the finite state automata, as the regular languages can be considered as a lower level of languages, but the context-free languages are considered to be the higher level of language. So in order to generate the context-free language, pushdown automata are used, as the pushdown automatas are more powerful than the finite automata. Okay, so this was all about the context free languages and context free grammar. अब इससे रिलेटेड जब हम एग्जांपल्स कंसेप्ट को देखो, जब कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे तो कंसेप्ट के अंदर टेक्निकल टर्म्स ही हो गए आपके, मैथमेटिकल टर्म्स ही आपके हो गए, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि वो टर्म्स का मतलब क्या है. मैथमेटिकल टर्म्स एक्सप्लेनेशन से क्लियर नहीं होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो एग्जाम्पल सॉल्विंग से क्लियर होते हैं. तो फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से रिलेटेड कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से बनती है. आपको ये एक चीज याद रखनी है. एंड देन सेकंड इज कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है, context free languages are considered to be the higher level of language. So in order to generate the context free language, push down automatas are used. So आपको याद रखना है कि context free languages are related to context free grammar. मैं CFG से रिप्रेजेंट करती हूँ, and are related to the push down automata. Okay, in order to generate the context free language, we have to use the context free grammar, and context free languages are considered to be the higher level of language. So in order to generate the context free languages, push down automatas are used. So somehow context free language, context free grammar and push down automata are related with each other. Okay, अब हमने देखे कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो हमको जनरेट करनी है, और जनरेट किसकी हेल्प से करनी है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और पुश डाउन ऑटोमेटा की हेल्प से. तो अब हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है. फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर.
context free grammar is defined using the four tuples. Okay, context free grammar को आप four tuples के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अब तक हमने फाइनाइट डीएफए में देखिए कि डीएफए कैन बी डिफाइंड यूजिंग 5 टपल्स, एनएफए कैन बी डिफाइंड यूजिंग 5 टपल्स. Likewise, context free grammar can be defined using 4 tuples, and those 4 tuples are G is equals to capital V, sigma, capital S and capital P. ओके, अब इन टर्म्स को हम देखेंगे कि ये टर्म्स क्या है. कैपिटल वी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वेरिएबल्स. You can say that the set of non-terminal symbols, or you can also for your, हम इसको और क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. V is nothing but set of variables, set of non-terminal symbols, and आप इसको अच्छे से याद रख सके, to remember, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि these are the capital elements. ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट है सिग्मा. सिग्मा इज द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स, मींस opposite to the V. These are the non-terminal symbols and sigma contains set of terminal symbols. तो terminal symbols को आप यहाँ पे consider कर सकते हैं small elements. Okay, then S represents the starting symbol and P represents the production rule. ओके, तो ये आपके 4 टपल्स का डिस्क्रिप्शन था. अब ये टपल्स के लिए भी हम आगे देखेंगे कि इन टपल्स की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. इनिशियली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि V represents the non-terminal symbols. You can say that the variables, or you can say the capital elements, where sigma represents the terminal symbols, and terminal symbols can also be called as the small elements. S represents the starting symbol and P represents the production rule. Okay, here the difference between the regular grammar and context free grammar lies in the production rule. रेगुलर ग्रामर के भी यही 4 टपल्स होते हैं, V, सिग्मा, S एंड P. बट रेगुलर ग्रामर से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से डिफरेंट है. सो द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर ग्रामर एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लाइज बिटवीन द प्रोडक्शन रूल. ओके, प्रोडक्शन रूल जो है वो रेगुलर ग्रामर का और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का डिफरेंट है. So in context free grammar, it has the production rule of the form A gives alpha, where alpha is the union of variable, and or you can say that alpha is the union of non-terminal symbols, also the terminal symbols, and including the set of non-terminal symbols union with terminal symbols along with the closure sign. क्लोजर का मतलब क्या होता है कि उस सेट के अंदर empty strings भी हो सकती है. ओके, तो production rule of context free grammar is A gives alpha, where alpha represents the set of non-terminal symbols in union with terminal symbols, and also a closure along with this set where A belongs to the variable. Okay, this is the capital A, and capital A, it is nothing but a non-terminal element, non-terminal symbol, so it will belong to the V. V means variable. Okay, so this was the production rule of context free grammar. इस सेक्शन में हमने क्या देखे कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को जनरेट करने के लिए हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करना है, एंड साथ ही साथ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो हायर लेवल की लैंग्वेजेस कंसीडर की जाती है. सो इन ऑर्डर टू जनरेट दीज लैंग्वेजेस वी नीड द पुश डाउन ऑटोमेटा, बिकॉज पुश डाउन ऑटोमेटा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द हायर लेवल ऑफ ऑटोमेटास. ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या देखे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम 4 टपल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, एंड दोज 4 टपल्स आर V, sigma, S and P. V is the non-terminal symbols, और V को आप कह सकते हैं variables and साथ ही साथ capital elements. Then sigma contains terminal elements और small elements. इसके अलावा S is the starting symbol, can be represented as capital S, and P is the production rule, where the production rule of context free grammar is A gives alpha, where alpha represents the set of variable means non-terminal elements with in union with terminal elements along with the closure. Closure means this set can also contain an empty string as epsilon, and A belongs to V. V means variable, so this A
belongs to the variable or a non-terminal symbol. ओके अब हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में आपको चीजें जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। हियर for generating a language that generates equal number of A's and B's in the form of A raised to n, B raised to n, the context-free grammar will be defined as G is equals to S comma A comma B, S gives AAB, A gives AAB and also epsilon. ओके अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख लो, हमको कहा हुआ है कि फॉर जनरेटिंग अ लैंग्वेज, हमको अगर एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है दैट जनरेट्स इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, इन ऑर्डर टू जनरेट अ लैंग्वेज that language will contain equal number of a's and b's in the form of a raised to n and b raised to n, context free grammar will be defined as this. ओके तो मेन क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमको देखना है कि क्या इस ग्रामर का यूज करके, ये एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो हमको देखना है कि क्या इस ग्रामर का यूज करके हमको जो लैंग्वेज जनरेट करने का टास्क दिया हुआ है, तो वो लैंग्वेज हम जनरेट कर सकते हैं क्या। हमको एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी है, ए रेस टू एन और बी रेस टू एन के फॉर्म में। तो हमको देखना है कि क्या हम इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से ये वाली लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखेंगे तो इसके अंदर ना हमको सबसे पहले वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। वैल्यूज में हमको v फॉर वेरिएबल और कैन बी कंसिडर्ड एज द नॉन टर्मिनल एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपसे नॉन टर्मिनल एलिमेंट क्या कहा था कि ये सारे कैपिटल एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आपको क्या दिख रहा है, देखो a एक कैपिटल दिख रहा है और s जो है वो आपको कैपिटल दिख रहा है। सो वी विल कंटेन s कॉमा a। ओके देन उसके बाद में हमारा आता है सिग्मा। सिग्मा इज द टर्मिनल एलिमेंट्स एंड टर्मिनल एलिमेंट्स आर मोस्टली रिप्रेजेंटेड एज द स्मॉल एलिमेंट्स। ओके स्मॉल लेटर्स, तो स्मॉल लेटर्स में अब आपको क्या दिख रहे हैं, स्मॉल a स्मॉल b। सो सिग्मा विल कंटेन स्मॉल a स्मॉल b। ओके देन उसके बाद में स्टार्टिंग सिंबल, एज द स्टार्टिंग सिंबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल एस, तो कैपिटल एस तो हमको दिख ही रहा है, तो स्टार्टिंग सिंबल इज एस। एंड फिर उसके बाद में प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शंस क्या होती है, तो प्रोडक्शंस किस फॉर्म में होती है, वेरिएबल्स का, नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स का, टर्मिनल एलिमेंट्स का, स्टार्टिंग सिंबल का, इन सारी चीजों का यूज करके हम जो प्रोडक्शंस तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि ये जो है वो एक प्रोडक्शन है, production where S gives A, B, and it is also a production where A gives A, B, and A can also gives epsilon. So these are the productions. तो अब हमको देखना है कि क्या इस ग्रामर की हेल्प से हम ये वाली लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोडक्शन लेते हैं। हमको एक प्रोडक्शन दिया गया है, S gives, S क्या हमको दे रहा है, S gives A, B. Okay, the production which is provided in our question or which is given in our question, with the help of that production we are going to find the solution or we are going to see if we can generate this language using the context free grammar. Okay, तो हमको सबसे पहला प्रोडक्शन क्या दिया गया था कि S gives AAB, तो हमने लिखे S gives AAB। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल b है। अब देखो हमको प्रोडक्शन के अंदर और क्या गिवन है, तो प्रोडक्शन के अंदर हमको कैपिटल A की वैल्यू गिवन है, हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b की कोई वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला A और ये वाला B एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल A की जगह पे दूसरा वाला प्रोडक्शन पुट अप करेंगे। दूसरा वाला प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल A की जगह पे स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b। सो वी विल राइट स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b। ओके, इसके बाद में ये वाला a एज इट इज और ये वाला b भी एज इट इज। ओके, उसके बाद में अगेन हमको क्या मिला है,
A, okay, again what can we do? We can again replace this capital A with this production. तो ये क्या प्रोडक्शन दी गई है हमको? A and B. So I'm gonna write A and B here. Rest two A's and rest two B's can be placed as it is. Okay. एंड हमको एक और चीज दी गई है कि ए को जो है वो हम और किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? तो ए को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं. सो नाउ आई विल रिप्लेस दिस ए विथ एप्सिलॉन फॉलोड बाय 3 B's एंड 3 A's. एंड एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन इज नथिंग बट एम्प्टी स्ट्रिंग. सो आप एप्सिलॉन को ना भी लिखे तो भी ठीक है. तो अब हम एप्सिलॉन को अगर आप रिमूव कर लेंगे, सो व्हाट विल गेट? 3 A's followed by 3 B's. अब 3 A's को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A raised to 3 and 3 B's को मैं कैसे लिख सकती हूँ? B raised to 3. Okay, so A raised to 3 and B raised to 3, it represents this condition for generating a language that generates equal number of A's and equal number of B's in the form of A raised to n, B raised to n. तो A raised to n और B raised to n के अकॉर्डिंगली हमारे पास हमने जो ऑब्टेन किया है वो सीक्वेंस भी क्या है? A raised to 3, B raised to 3. इसका मतलब क्या है कि हम इस ग्रामर की हेल्प से इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो हमारे पास कंक्लूजन हमको क्या मिला है कि A raised to 3, B raised to 3 is equals to A raised to n, B raised to n. So this is how the language can be generated using context-free grammar. So in the conclusion, I will write, this is how the language can be generated using context-free grammar. Okay. अब आपको वैल्यूज निकालने तो आ गई है. ग्रामर आपको सबसे पहले गिवन रहेगा, उस ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपको V, सिग्मा, S और P की वैल्यूज निकालनी है. देन उस जो आपको गिवन है ग्रामर के अंदर, उसी गिवन में से डेटा को आपको यूज करना है और उसकी हेल्प से जो आपको क्वेश्चन के अंदर टास्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है और देखना है कि जो हमको CFG प्रोवाइडेड है, जो हमको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोवाइडेड है, क्या उस ग्रामर की मदद से हम ऐसी वाली लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं. सो हमने कंक्लूजन फाइंड किया, हमने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की. सॉल्व करने के बाद में व्हाट वी कंक्लूडेड दैट वी कैन फॉर्म कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. ओके. अब हम दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं. एक्चुअली आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिलेबस बहुत वास्ट है और हमारे पास लेक्चर्स इसके कम होते हैं, इसलिए हमको हर लेक्चर में एक से ज्यादा टॉपिक जो है वो कवर करने होंगे, तभी जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेशन ट्री. डेरिवेशन ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पार्स ट्री. डेरिवेशन ट्री को आप पार्स ट्री कह सकते हैं. Derivation tree or parse tree is an ordered rooted tree that graphically represents the semantic information of strings derived from a context-free grammar. Okay, as we have seen earlier, context-free grammar का concept अभी ही just हमने clear किया है कि context-free grammar के अंदर 4 tuples होते हैं. context-free grammar की हेल्प से हम context-free languages generate कर सकते हैं. तो ये चीज हमने अभी क्लियर की है, तो आपको डेरिवेशन ट्री समझने में भी आसानी होगी. डेरिवेशन ट्री क्या है? ये एक ऑर्डर्ड रूटेड ट्री है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है ऐसी स्ट्रिंग्स को जो हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं. ओके. तो डेरिवेशन ट्री को के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि डेरिवेशन ट्री को हम पार्स ट्री भी कहते हैं एंड डेरिवेशन ट्री ये एक बेसिकली ऑर्डर्ड रूटेड ट्री है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके लिए भी हम प्रॉब्लम देखेंगे. प्रॉब्लम देखने के बाद में चीजें जो है वो अच्छे से मतलब चीजें जो है वो अच्छी से क्लियर हो जाती है. जब तक हम प्रॉब्लम नहीं देखते सारी चीजें सिर्फ एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर नहीं होती. ठीक है. नाउ एग्जांपल,
फॉर द ग्रामर हमको ग्रामर दिया गया है VTPS where it has the productions S gives 0B, A gives 1 followed by 2 capital A's and A can also give epsilon and B gives 0AA. ओके अब जब हम डेरिवेशन ट्री डिराइव करने वाले हैं या डेरिवेशन ट्री ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन से पहले हमको डेरिवेशन ट्री के अंदर के कुछ टर्म्स को समझना होगा। रूट वर्टेक्स क्या होता है? मस्ट बी लेबल्ड बाय द स्टार्ट सिंबल हमें पता है हम स्टार्ट सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। ओके तो रूट वर्टेक्स मस्ट बी लेबल्ड बाय कैपिटल एस in the graphical representation of derivation tree. Then उसके बाद में vertex must be labeled by the non-terminal symbols मतलब के variables और मतलब के capital elements. ओके तो vertex को हमको किसके थ्रू लेबल करना है? vertex should be labeled using the non-terminal symbols or you can say that the variables or the capital elements. Then leaves can be labeled by the terminal symbols or epsilon. terminal symbols मतलब small elements, so leaves जो है वो leaves को हम टर्मिनल सिंबल के थ्रू लेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ लीव्स को हम किसके थ्रू लेबल कर सकते हैं? एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग के थ्रू भी हम लीव्स को लेबल कर सकते हैं। ठीक है तो याद रखना है कि रूट वर्टेक्स हमेशा किससे लेबल करेंगे हम? रूट वर्टेक्स वी विल ऑलवेज label the root vertex using the starting symbol. After that the vertex can be labeled using the non-terminal symbols means the variables or the capital symbol and leaves can be labeled using the terminal symbols means the small elements. Okay अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम वैल्यूज देखें तो हमारे पास v की वैल्यूज क्या है? तो इस पूरे ग्रामर के अंदर कैपिटल आपको क्या दिख रहा है? B, कैपिटल A एंड S तो हम लिख सकते हैं V कंटेन S, A, B। ओके देन उसके बाद में टर्मिनल सिंबल सिग्मा रिप्रेजेंट्स द टर्मिनल सिंबल हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 एंड 1 को हम ले सकते हैं टर्मिनल सिंबल के अंदर। उसके बाद में S रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग सिंबल एंड वी हैव दीज प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस की वैल्यू में क्या आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू आएंगी। सो दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ योर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हमको इसकी हेल्प से एक डेरिवेशन ट्री ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या बोला है कि रूट वर्टेक्स मस्ट बी लेबल्ड बाय द स्टार्टिंग सिंबल। ओके तो स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास क्या है? तो रूट वर्टेक्स मतलब क्या है? आपका डेरिवेशन ट्री का सबसे पहला वर्टेक्स जो है वो रूट वर्टेक्स से जाना जाता है। आपके डेरिवेशन ट्री का सबसे पहला वर्टेक्स इनिशियल वर्टेक्स ऑफ योर डेरिवेशन ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द S as it is the root vertex and root vertex are always labeled with the starting symbol. And root vertex के बाद में अब देखो S तो हमारे पास S की प्रोडक्शंस क्या है? हमने सबसे पहले रूट वर्टेक्स में S लिया है। S के हमारे पास प्रोडक्शंस क्या है? तो 0 एंड B तो हम लिखेंगे S gives 0 and S gives B। अब 0 क्या है? 0 इज नथिंग बट द टर्मिनल एलिमेंट्स को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। वैसे भी हमारे पास 0 का कोई भी यहाँ पे अदर प्रोडक्शन नहीं है तो हम 0 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमको यहाँ पे मिलता है B क्या है? हमारे पास B की प्रोडक्शन दी गई है तो यस B की प्रोडक्शन हमको दी गई है 0 AA तो मैं B के लिए लिखूंगी इट्स 0 देन कैपिटल A एंड अगेन कैपिटल A। अब अगेन यहाँ पे 0 है एज के 0 की हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन नहीं दी हुई है और 0 इज अ टर्मिनल एलिमेंट सो वी कैन अगेन लीव 0 एज इट इज। देन उसके बाद में हमारे पास 2 एज है। कैपिटल ए को देखो क्या हमारे पास दिया गया है? कैपिटल ए के लिए हमको प्रोडक्शन दी गई है 1 AA तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1 A ठीक है और उसके अलावा ए को हम और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सो वी कैन रिप्लेस ए यूजिंग द एप्सिलॉन। ओके तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगेन 1 1 के हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन नहीं है
एंड 1 जो है वो टर्मिनल एलिमेंट के अंदर आता है, तो टर्मिनल एलिमेंट्स को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हम नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स को, वर्टेक्स को, वर्टाइसिस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अभी अगर हमको इस डेरिवेशन ट्री को यहीं पे स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 वर्टाइसिस जो है वो अगेन बाकी है, और इसके लिए हम infinitely productions बना सकते हैं, क्योंकि this A can be replaced with 1AA, this A can be replaced with epsilon, then again वो वाला A जो है वो 1AA से replace होगा, so there can be the infinite creations of और infinite substitutions of this A। so यहाँ पे अगर हमको इस ट्री को स्टॉप करना है तो हमको A को epsilon से रिप्लेस कर देंगे। Okay, now this is your derivation tree and it is the complete derivation tree, जिसके अंदर S क्या है, S जो है वो rooted vertex है, और फिर S के बाद में ये सारे जो कैपिटल B कैपिटल A आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये आपके vertex है। This is the vertex, then these two are the vertices, these two are the vertices। ओके एंड फिर उसके बाद में ये जो है 0 0 1 एप्सिलॉन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, ये जो है वो आपके क्या है, लीव्स है। ओके, लीव्स, लीव्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्टाइसेस या ऐसे वर्टेक्स जिसके कोई और चिल्ड्रन नहीं है या जिसकी कोई और चाइल्ड नहीं है, द वर्टाइसेस दैट डजंट कंटेन more children or that doesn't contain any children, any child, that vertices can termed as a leaves। यहाँ पे देखो जैसे कि 0 है, ये 0 जो है वो एक ऐसा वर्टेक्स है जिसके कोई और दूसरे चाइल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक अकेला है, सो इसको हम लीव्स कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ऐसे वर्टाइसेस जिनके चाइल्ड नहीं होते हम उसको लीव्स टर्म करते हैं। सो यहाँ पे देखो इस डेरिवेशन के ट्री के अंदर एस जो है वो आपका रूटेड वर्टेक्स है, फॉलोड बाय सम वर्टाइसेस बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए एंड लीव्स एज द 0 0 1 ई ई ई टर्मिनल सिंबल्स। ओके, अभी उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं डेरिवेशन ट्रीज, इसी का टॉपिक है, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। डेरिवेशन ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, लेफ्ट डेरिवेशन ट्री एंड राइट डेरिवेशन ट्री। अब लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और राइट डेरिवेशन ट्री क्या है तो देख लो, एक 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। Left derivation tree is obtained by applying the production to the leftmost variable in each step, and right derivation tree is obtained by applying production to the rightmost variable in each step। अब लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और राइट डेरिवेशन ट्री क्या है तो इसको समझने के लिए डायरेक्टली हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर जनरेटिंग द स्ट्रिंग ए ए बी ए ए फ्रॉम द ग्रामर S gives AAS, ASS, epsilon and A gives SBA and BA। हमको ये ग्रामर दिया गया है, ग्रामर के अंदर V सिग्मा S और P की वैल्यूज अब आपको निकालने के लिए आती है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज निकाल के स्पेशली नहीं लिखूंगी, आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि V के वैल्यूज क्या है, तो V की वैल्यू है S, देन उसके बाद में ये कैपिटल A, देन ये 2 कैपिटल S, फिर उसके बाद में ये A ये S, तो इसके मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू इंटू ब्रैकेट कैपिटल S कॉमा कैपिटल A, देन उसके बाद में सिग्मा की वैल्यूज क्या आएगी, स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यूज आ जाएगी इनटू ब्रैकेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, स्टार्टिंग सिंबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज s, और प्रोडक्शंस में हम क्या लिख सकते हैं, s gives AAS, ASS, epsilon and a can give SBA और BA, so these comes under the productions। अब हमको देखना है कि इस ग्रामर का यूज करके क्या हम ऐसे डेरिवेशन ट्री ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि इस स्ट्रिंग या जो कि हमें ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करे। तो हम देखेंगे लेफ्ट डेरिवेशन ट्री के थ्रू हम वो कैसे कर सकते हैं और राइट डेरिवेशन ट्री के थ्रू वो हम कैसे कर सकते हैं। एज वी ऑलवेज नो दैट द रूट वर्टेक्स ऑफ आवर डेरिवेशन ट्री शुड बी एस। ओके, अब एस को हम कैसे रिप्रेजेंट या रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस को हम AAS, ASS और एप्सिलॉन इन तीनों में से किसी भी स्ट्रिंग के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ एस को ASS के साथ में, दिस इज दिस ASS। ओके, ये हमने रिप्लेस किए ASS के साथ में। अब देखो यहाँ पे A जो है वो A का हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है और हमको
ए जो है वो एक स्ट्रिंग हमको ऑप्टेन हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या चाहिए, ए बी ए हमको ये स्ट्रिंग्स ऑप्टेन करनी है। अब ये जो है वो हमारे पास दो एस है, तो ये इसमें से लेफ्ट मोस्ट एस कौन सा है, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। यहाँ पे तो हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स ऑफ दिस डेरिवेशन ट्री। तो हम इस लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स पे अप्लाई करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन जो कि है ए एस। तो मैं यहाँ पे इस पे डालूंगी ए एस। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में अब हमको कितने ए मिले हैं, अब तक हमको दो एज मिले हैं, टू एज। अब हमको बी ए और ए चाहिए, तो अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, दिस इज द राइट वन एंड दिस इज द लेफ्ट वन, सो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ अवर डेरिवेशन ट्री। तो हम इस ए को किससे रिप्लेस करेंगे, एज हमको अब क्या चाहिए, बी एंड ए चाहिए, तो यहाँ पे हमको बी ए दिख रहा है, तो मैं इस ए को रिप्लेस करूंगी बी और ए के साथ में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, बी एंड ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक और एस बच गया है, तो इस एस को हमको सिर्फ अभी क्या चाहिए, हमको मिल गया है ए बी ए। अब हमको सिर्फ एक और ए चाहिए, तो एक और ए हमको कैसे मिलेगा, अगर हम ये रिप्लेस करेंगे तो हमको ए मिलेंगे, लेकिन अगर हम ये वाला प्रोडक्शन प्लेस करेंगे तो इसके बाद में हमको अगेन दिस ए के लिए बी ए मिलेगा, जो कि हमको हमारी स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके साथ में रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एस एस। अब हमको हमारी स्ट्रिंग ऑप्टेन हुई ए बी ए, ठीक है। अब ये जो हमारे वर्टाइसेस है इनको हम ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ सकते, इनको हमको किसी न किसी चीज से रिप्लेस करके कंप्लीट करना होगा। तो हम एस को और किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एप्सिलॉन से। तो देखो हम यहाँ इस लेवल पे सबसे पहले एप्सिलॉन लगा के कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद में ये लेवल पे हमारा सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ पे एक एस बाकी रहता है, तो इस पे भी हम एप्सिलॉन लगाएंगे। So in this way we have obtained AABAA this string using the left derivation tree। अब इसी सेम चीज को हम राइट डेरिवेशन ट्री के थ्रू कैसे करेंगे, तो देख लो, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम जो है वो स्टार्टिंग सिंबल के साथ में रूट वर्टेक्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एस को हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो ए एस एस। ओके, अब ये जो है वो हमारा राइट एलिमेंट है, ये जो हमारा लेफ्ट एलिमेंट है, राइट वर्टेक्स और लेफ्ट वर्टेक्स। अब राइट डेरिवेशन के ट्री के अंदर हमको क्या करना है कि राइट मोस्ट वर्टेक्स के साथ में हमको अदर प्रोडक्शंस बतानी, तो दिस इज आवर राइट मोस्ट प्रोडक्शन और राइट मोस्ट वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शंस बताएंगे और हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, अब हमको सिर्फ अब तक एक ए मिला है, हमको और एज चाहिए, ठीक है, ए बी ए, तो हम अगेन इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एएसएस के थ्रू। अब हमको कितने मिले ए, तो हमको दो एज मिले। अब यहाँ पे हमारा राइट मोस्ट वर्टेक्स कौन सा आता है, तो दिस इज अवर राइट मोस्ट वर्टेक्स एस। अगेन हम इस एस को किसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस एस को मैं यहाँ पे फिलहाल एएसएस के थ्रू ही रिप्लेस करती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैंने एएसएस के थ्रू क्यों रिप्लेस की। ओके, तो अब तक हमको जो मिला है वो क्या मिला है, स्ट्रिंग्स ए एंड ए, मतलब स्टार्टिंग के दो ए मिल गए और एंडिंग का एक ए मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, बी ए चाहिए, तो बी ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको राइट डेरिवेशन ट्री बना रहे, तो राइट डेरिवेशन ट्री को कंप्लीट करना होगा। अब इस ए को तो हम कुछ प्रोडक्शन नहीं शो कर सकते, अब हमको अगर यहाँ पे स्टॉप करना है तो हम इस एस को एप्सिलॉन के थ्रू जो है वो रिप्लेस करेंगे। सो एप्सिलॉन के थ्रू हमने रिप्लेस किया। अब जो हम है वो इस लेवल पे आ सकते हैं, इस लेवल के राइट मोस्ट सारे एलिमेंट्स जो वो कंप्लीट है, तो इसके बाद में इससे पहले क्या आता है एस, तो इस एस को अब मैं रिप्लेस करूंगी इसके साथ में ए ए एस। सॉरी, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, इस एस को एक्चुअली हमको इसके साथ में रिप्लेस करना था, ए कैपिटल ए एंड कैपिटल एस।
Okay, and this A can be replaced by BA. Okay, so this is small b and this is small a. ओके, अब जो है वो हमारा डेरिवेशन ट्री जो है वो कंप्लीट है। इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे देख लो, कैपिटल एस, फिर इसको हमने रिप्लेस किए ए एस एस के साथ में, और इस एस को हमने क्या किए, ये हमारा जो है वो राइट मोस्ट वर्टेक्स है, तो इस एस को हमने किससे रिप्लेस किए, इस एस को हमने रिप्लेस किए ए ए और कैपिटल एस के साथ में, फिर इस ए को हमने, फिर यहाँ पे हमारा राइट मोस्ट एस जो है वो ये एस है, तो इस एस को हमने फिर से ए एस और एस के साथ में रिप्लेस किए। अब हमको इनको कंप्लीट करना है, तो हमने इसको एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस किए, जो कि हमारी प्रोडक्शंस में दिया है। फिर इस ए को हमने जो है वो बी और ए के साथ में रिप्लेस किए। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन द स्ट्रिंग्स ए बी ए। ओके, एंड यहाँ पे हमारा देखो, इस लेवल पे हमने सब कंप्लीट कर दिया है, इस लेवल पे भी सब कंप्लीट है, इस लेवल पे भी सब कंप्लीट है, यहाँ पे एक एस बाकी रह रहा है, तो इस एस को, एज दिस इज द this can be replaced using the epsilon, and epsilon will further can be termed as a leaf element, तो हमने s को जो है वो epsilon के थ्रू रिप्लेस किया। so this is your final derivation tree, as it is the rightmost derivation tree or right derivation tree, this is the left derivation tree। आपको सिर्फ करना क्या है कि लेफ्ट डेरिवेशन ट्री के अंदर ये समझो आपका रूट वर्टेक्स है और ये दो वर्टेक्स है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बना रहे हैं, तो लेफ्ट डेरिवेशन की ट्री के अंदर आगे आगे जो आपको प्रोडक्शंस आएंगी ना, उन प्रोडक्शन को आपको लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स पे अप्लाई करना है। जैसे कि हमको नेक्स्ट कोई फर्दर प्रोडक्शन मिल रही, तो ये क्या है हमारा, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो अगर हम लेफ्ट डेरिवेशन ट्री ऑब्टेन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोडक्शन जो है वो हम लेफ्ट वर्टेक्स पे अप्लाई करेंगे। वेयर इन केस ऑफ द राइट डेरिवेशन ट्री, अगर हम राइट डेरिवेशन ट्री ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन जो है वो हम राइट वाले वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द लेफ्ट डेरिवेशन ट्री, वी हैव टू अप्लाई the productions to the leftmost element or to the leftmost vertex, and in order to obtain the right derivation tree, we have to apply the production to the rightmost vertex of a derivation tree or of a derivation tree or in each step, ठीक है। तो डेरिवेशन ट्री हमने देखे, डेरिवेशन ट्री क्या होता है, ये जो हमको ग्रामर दिया गया था, इस ग्रामर की हेल्प से हमने एक डेरिवेशन ट्री, एक सिंपल डेरिवेशन ट्री ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए। फिर हमने देखे कि डेरिवेशन ट्री के भी दो टाइप्स है, एक है लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और दूसरा है राइट डेरिवेशन ट्री। इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिए, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ये एक ग्रामर दिया गया था, इस ग्रामर की हेल्प से आपको डेरिवेशन ट्री एक ऐसा ऑब्टेन करना था जो कि ये वाली स्ट्रिंग्स को शो करता हो। तो हमने लेफ्ट डेरिवेशन ट्री में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स पे सारे प्रोडक्शंस अप्लाई करके ए बी ए ये वाली स्ट्रिंग को ऑब्टेन किए यूजिंग द लेफ्ट डेरिवेशन ट्री, and using the right derivation tree also we obtained a this string using the right derivation tree by applying the productions to the rightmost element in each step. So this is how your right derivation tree and left derivation tree can be graphically represented using the context free grammar. Okay, so I hope कि आपको आज जो लेक्चर में हमने देखा है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एवरीबॉडी देयर, यस, चलो लेट भी हो गया है, अब मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।